Today is the eve of Ashura. Ashura, we commemorate the Shahadat of Imam Hussain on the day of Ashura. The tragedy of Ashura happened about 1400 years ago. Imam Hussain, which is our third Imam and the grandson of Prophet Muhammad, was tragically killed with his family in the plains of Karbala in the country of Iraq by a tyrant ruler called Yazid. Yazid was oppressing everyone during his times, and Imam Hussain was the only person who stood against injustice and to save humanity. If you want to know Imam Hussain is the person who has inspired Mahatma Gandhi. If you read Mahatma Gandhi's biography, he says that I've learned the lesson of injustice from Imam Hussain. We are celebrating and commemorating the martyrdom of Imam Hussain today. How do you observe the day of Ashura? Ashura is a day of tragedy for all the Shia Muslims in the world, especially the people of Junnar who have been here for almost 1,000 years, even before the time of Shivaji Maharaj. So what we do is we commemorate his shahadat, the day that he was killed. We mourn his shahadat, and we carry out processions and julus tomorrow morning. Tonight, everyone will commemorate and remember the lessons of Imam Hussain and the lesson of injustice and humanity. How is the Muharram observed in your community? During the month of Muharram, we have majlises and speeches and matam. During the majlises, our alims and ulemas come and propagate the lessons of Imam Hussain. These lessons are nothing but a lesson of humanity and the lesson to stand against injustice. So no matter wherever you see Shia Muslim, whether it's oppression in Nigeria, Yemen, Iraq, Iran, all Shia Muslims are taking forward that legacy of Imam Hussain today. How does the message of Karbala relate to modern day challenges? Modern day, what we learn from the lesson from Karbala is that no matter what happens or no matter what the odds are, we always stand against terrorism, we always stand against injustice, we stand against anything that is against humanity. What message would you like to give to the public on this occasion? Imam Hussain is not only the grandson of Prophet Muhammad, but he is also our Imam. He is also an inspiration to thousands of great leaders across the world like Mahatma Gandhi, Karl Marx and others. The lessons of injustice, humanity have been propagated by his martyrdom. So please stand against injustice. Please try to propagate humanity wherever you are and be inspired from the tragedy and the life of Imam Hussain. Thank you, sir. ये जो आलम है ये बहुत बड़ी शान है आलम इस्लाम की। ये मोहम्मद पैगंबर ने खैबर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दिया था और उन्होंने उनके बाद हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास को दिया है। और ये आलम की वो शान है कि ये आलम जब तक ऊंचा रहेगा तो आलम इस्लाम चमकता रहेगा और आलम इस्लाम की ये शान है। और आज की जो 9 मुहर्रम की रात है ये बहुत दुख की बहुत गम की रात है। और इस रात में इमाम हुसैन के घराने पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुआ है। और कल 10 मुहर्रम है, आज आशूर की शब बोला जाता है। कल इमाम हुसैन करबला में अपने पूरे परिवार के साथ शहीद हो जाएंगे। तो इस वजह से 10 मुहर्रम मनाया जाता है उनके सोग में, उनके गम में। और इमाम हुसैन वो हस्ती है जिन्होंने सिर्फ सच्चाई को बढ़ावा दिया है, जिसने सिर्फ सच्चाई को बढ़ावा दिया है। और इमाम हुसैन की एक ही सोच थी कि दुनिया से पाप मिट जाए, अत्याचार जुल्म ना रहे, और जो भगवान ने अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया है इंसानियत का, पूरी दुनिया सिर्फ उसी को ही फॉलो करे। और भाई एक सवाल कि जिन्होंने ये जुल्म किया उन जालिमों के नाम बता सकते हैं? उन जालिमों में सब में बड़ा नाम जो पूरे दुनिया के दहशत गर्द में सब में बड़ा नाम, वो नाम था यजीद मलून का। ये यजीद वो था जिसकी एक ही सोच थी, एक ही फिक्र थी कि बस दुनिया में पाप रहे और पाप का नाम बहुत ऊंचा रहे। मगर इमाम हुसैन ने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। इमाम हुसैन ने सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी पर अपनी
सब कुछ कुर्बान करके अपना लुटा दिया और दुनिया से गुनाहों का, पाप का नामो निशान, इस्लाम का नाम ऊंचा रोशन किया और दुनिया से, पूरे दुनिया से जुल्म और गुनाह को मिटा दिया। ये इमाम हुसैन वो शख्सियत थी। अच्छा सर, ऐका, आपण मोहरमच्या दिवशी सर्व धार्मिक बांधवांना काय संदेश द्याल तुम्ही? हम मुहर्रम में पूरे दुनिया को यही पैगाम मैसेज देते हैं कि इंसानियत का बहुत बड़ा खुदा, इंसानियत दुनिया में कायम करने वाला वो एक ही नाम है हज़रत इमाम हुसैन, जिसने पूरे दुनिया को मैसेज दिया है कि इंसानियत सब में बड़ी चीज़ है। पूरे हम जितने भी हम पूरे वर्ल्ड के शिया समाज ये जो 10 मुहर्रम बनाते तो सिर्फ एक ही पैगाम है कि इंसानियत रहे, भाईचारा रहे और दुनिया में गुनाह का वजूद ना रहे। आता सर, आपण काही वर्षापासून बघतोय आणि मी पण नुकताच आता एक इशू पाहिला का तुमची समाजाची जी पोरं आहे, म्हणजे जी यंग जनरेशन आहे, तर ते आपलं एक योगदान करताय का पाणीची बॉटल वगैरे दवाखान्यात किंवा कोणत्या गरजू व्यक्तीला पाणीची बॉटल, आणि आपल्या फतेह चौक आणि पूर्ण बाड्यामध्ये प्रत्येक जागी पाणीचे मटके वगैरे लावलेत, तर याच्याबद्दल काय सांगाल सर? सर, ये जो करते हैं हमारे जवान लड़के, हमारे शिया कौम के जवान जो करते हैं, ये जो पानी का मसला है, ये जो पानी का ऑप्शन आप पूछ रहे हैं, तो ये यजीद जो शत्रु था, जो जालिम था, इसने 6 महीने का लड़का था करबला में, उसे पानी नहीं दिया और इमाम हुसैन के पूरे परिवार पे पानी बंद कर दिया था। उनको भूखा प्यासा करबला में शहीद किया गया। उनकी प्यास के, उनके विचार के, उनके जो ऊपर जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, उसकी वजह से हम ये बांट कर बताते हैं दुनिया को कि यजीद जो था, इसने इमाम हुसैन के पूरे घराने पर बहुत जुल्म किया। 6 महीने का लड़का, 6 महीने के लड़के से लेके तो 60 साल के आदमी तक इन्होंने करबला में इमाम हुसैन को पानी नहीं दिया। इस वजह से हम पूरे दुनिया में मुहर्रम में पानी बांटते हैं, सबीले लगाते हैं। ये हमारे जवानों की सोच है। हम पूरे दुनिया को पैगाम देते हैं कि पानी इस वजह से हम लोगों में तकसीम करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही पैगाम था कि जालिम से नफ़रत करे और मज़लूम का साथ दे। जहाँ भी दुनिया में कोई मज़लूम होता है, हम उसके लिए पहले आवाज़ उठाते हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें ये पैगाम दिया कि हमेशा मज़लूम के साथ रहो और जालिम से जो है नफ़रत करो, जालिम से बेजारी का इज़हार करो। इसीलिए हम जो है दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि सबसे बड़े मज़लूम के जो हामी थे, मददगार थे, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। लिहाजा दुनिया के हर मज़लूम को जो है इमाम हुसैन के रास्ते पर चलना चाहिए और जो सबसे बड़ा जालिम था यजीद, उसके रास्ते पर जो भी चले उसके मुकाबले में खड़े हो जाना चाहिए। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम था और यही पैगाम जो है हम सबको मिलकर जो है एक साथ में दुनिया के सामने पेश करना है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सर्व धार्मिक बांधवांना तुम्ही मोहरमच्या निमित्ताने काय संदेश द्याल? हमारा ये मुहर्रम के बारे में ये पैगाम है कि जैसा कि मज़लूम का साथ दो और जालिम के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाओ। जहाँ भी अत्याचार हो रहा है, जहाँ भी जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ और जहाँ भी तुम्हें मज़लूम मदद के लिए पुकारे उसकी मदद के लिए जाओ।
पूरी इंसानियत के लिए हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मुहर्रम के ज़रिए यही पैगाम है। आता उद्या 10 मोहरम आहे, याला आशुरा पण असे पण म्हणतात, तर या दिवशी खास काय असतं? आशूरा मुहर्रम का वो 10वां दिन है जिसमें सुबह से लेकर असर के वक्त तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी जो थे 72 वो सब करबला के मैदान में भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। उसमें जो है एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 6 महीने का बच्चा था। जब सब लोग शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस बच्चे को लेकर मैदान में पहुँचे और पहुँचने के बाद ज़ालिमों से सवाल किया कि कम से कम इस छोटे मासूम बच्चे को तो पानी पिला दो, लेकिन उन ज़ालिमों को रहम नहीं आया। उन ज़ालिमों में एक बहुत बड़ा तीरंदाज था जिसका नाम मलऊन हुरमुला था। उस मलऊन ने जो है उस 6 महीने के मज़लूम बच्चे को जो है, मासूम बच्चे को जो है अपने तीर का निशाना बनाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में जो है उस बच्चे को शहीद कर दिया। तो तारीख़ बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके खून को अपने हाथों पर लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान से आवाज़ आई ट्रूकॉलर द्वारा कैसेट से "ए हुसैन, इनकमिंग कॉल की एक कतरा पहचान की बारिश गई। का आसमान से नहीं बरसेगा। फिर इमाम ने उसको ज़मीन पर डालना चाहा, ज़मीन से आवाज़ आई एक दाना जो है ज़मीन है उनका सदका है कि आज पूरी दुनिया में जो है अल्लाह का जो हमें अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से जो कुछ मिल रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके क़ुरबान होने वाले साथियों का सदका है। लिहाजा हम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलते रहेंगे और उनका रास्ता यही है कि मज़लूम का साथ दो और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ और ज़ालिम से नफ़रत और बेज़ारी करो। इसीलिए हम जो है दुनिया के हर ज़ालिम से नफ़रत का ऐलान करते हैं और दुनिया के हर मज़लूम की मदद के लिए आगे आते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज इथं जे आपण दरबार म्हणतात, तर इथं याची वैशिष्ट्य काय? ये दरबार जो है ना, ये दरबार जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक फ़ौज के ख़ास कमांडर थे जिनका नाम था हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई भी थे। तो ये फ़ौज के कमांडर थे और इनके मुतालिक जैसा हिस्ट्री में बताया गया है कि जब ये मैदान में लड़ने के लिए जाते हैं तो दुश्मन इनसे बहुत घबराते थे और इनको जो है बड़ी दगाबाजी के साथ जो है मारने के लिए दुश्मनों ने प्लान किया और उसके बाद उनके दोनों बाजुओं को जो है, दोनों हाथ को, दोनों बाजुओं को काट दिया गया। और उनके पास जो वो पानी लाने के लिए जा रहे थे तो वो पानी जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए लाने के लिए जा रहे थे। तो वो उसके बाद उन्होंने अपने मुंह में, अपने दांतों में, वो जिसे मशकीज़ा कहते हैं, वो पानी के बर्तन को लिया और वो जाने के बाद जो है जब पानी भर कर लाए तो ज़ालिम ने जो है वो मश्क पर भी तीर लगाया और उसके बाद जो है पूरा पानी बह गया और इसी तरीके से फिर उन पर जो है हमला किया गया। और इसीलिए जो है इस दरबार को जो है बाबुल हवाइज भी कहते हैं। यहाँ पर लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और उसके बाद जो है उनकी मन्नतें पूरी होती है। ये दरबार जो है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का दरबार कहलाया जाता है और यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े मोजिज़ात होते हैं और लोग जो आकर जो है अपनी मुरादें पाते हैं।